میرے ساتھ ایم پی سارا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم کیا کہیں گی آج اسمبلی تحلیل ہونے جا رہی ہے کہ خان پھر یو ٹرن لینا ہے کوئی؟ ایک اعلان کرنے والے ہیں، بڑا بہترین ڈیسیجن ہے اور ساری قوم اس ڈیسیجن کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ جو عدم اعتماد کا نام دے کر کل وہ تحریک پیش کرنا چاہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ عدم اعتماد ہے جو 20 حلقوں میں جب الیکشن ہوا تھا تو عوام نے ان کے اگینسٹ دیا تھا، اور شرم آنی چاہیے کہ ساری عوام نے آپ کے خلاف مینڈیٹ دیا اور آپ اٹھ کے اسمبلیوں میں اپنے طریقوں سے اعتماد لینا چاہتے ہیں۔ آئی تھنک اس سے بڑا کوئی تماچا تھا نہیں۔ آپ سب کے بجلی کے بل آئے ہیں۔ میڈم تحریک عدم اعتماد پہلے خان کے لیے بھی پیش کی گئی تھی، خان صاحب بھی اپنے عہدے سے فارغ ہو گئے تھے، اب یہ پنجاب اسمبلی میں کروانے جا رہے ہیں پرویز الہی کے خلاف، اگر کامیاب ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جی بالکل بھی نہیں کامیاب ہوگی۔ 200 روپے کا تیل ہو گیا۔ میں خود ممبر پنجاب اسمبلی 1100 اور روپے وہ جو 3 منحرف خواتین آٹے کی بوری جو عمران خان کے دور میں تھی، اور جتنا شعور عوام میں ہے اور جو حال اس وقت ووٹوں کا ہوا ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسی اور چیز ہماری معیشت جس سے کامیاب جو دیوالیے کے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خان صاحب پہ جب اٹیک ہوا اس کے بعد عوام فائٹ نکل نہیں رہی، آج تک نظر نہیں آ رہا ہے اتنا؟ آج اگر ایک عوام یہ تو لے کر آئے بالکل تھے نکل رہی ہے تو اور وہ جو صرف خوف و ہراس انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی تھی تھی وہ ختم ہو گیا۔ یعنی ان بالکل دو موجود ہیں، خاندانوں لوگ کے پہنچ رہے ہیں اور بہت سارے خان کے ایسے چیتے ہیں جو گھر میں بیٹھے ان دونوں خاندانوں کے سرمایے کو بچا، سیاست سے کوئی میڈم تعلق کیا کہیں گی آج ایک بڑا اعلان ہونے جا رہا ہے اور پرویز الہی صاحب خان صاحب کے ساتھ ہیں؟ بالکل ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں، آپ کو لگ رہا ہے ہم سارے بادشاہ پورے زور و شور کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ۔ آج جو اندر کی میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں کیا ہوا ہے آج؟ انہوں نے ہمارا مالی بیچا ہے کرنی ہے اور انشاءاللہ ہم بغیر کسی خوف و خطر کے خان صاحب کے ساتھ ہیں، جو بھی ہوگا ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں کے طوطے اڑے ہوئے ہیں، ان کی جانیں نکلی ہوئی ہیں، انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح وہ خان صاحب کو کسی طرح ٹریپ کرے، لیکن اللہ الحق ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی صاحب اینڈ پہ دھوکہ دے جائے؟ انسانی حقوق نام کی کوئی چیز نہیں دیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے اگر دے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے قائدین کو کوئی نہ کوئی سبب ہے، برہنہ کوئی نہ کر کوئی کے سبب نکال تشدد لے کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں میں کچھ نہیں کہتی ہوں۔ میڈم سب کے کیس ختم ہو گئے اور کہتے ہیں نیب بھی ختم کرنے جا رہے ہیں، کہتے ہیں ایک اور ادارہ بنائیں گے، اس کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ اعتماد میں لیں گے۔ اس ادارے کا نام کیا ہوگا؟ NRO2 یا NRO3؟ میرے خیال میں NRO3 کر دیں اس کو۔ سارا کچھ تو یہی کچھ ہو رہا ہے، خود ہی آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ ہم لوگ عوام صرف اور صرف دیکھتی رہتی ہے کہ شاید کچھ بچ جائے گا، شاید کچھ بچے گا، پر بچنے کے چانسز نہیں ہیں۔ ملک آلریڈی ڈیفالٹ ہو چکا ہے، یہ اب پیپروں میں ہمیں پاگل نہیں بنا سکتے۔ وہ کہتے ہیں ڈیفالٹ خان صاحب نے کی ہے، اس کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے۔ اور خان صاحب نے تو گھڑی چوری کی ہے، خان صاحب نے تو توشہ خانہ کیس کا مسئلہ پڑا ہے نا، ان سے کچھ بھی کہہ دے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی خان صاحب کی گھڑی کی وجہ سے یہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ معیشت جو انہوں نے سنبھالی تھی آ کر وہ یہ کر رہے ہیں، آ کر سنبھال رہے ہیں نا۔ ہمارا ملک کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا، بڑی مہربانی ان لوگوں کی بھائی میرے۔ اب ان سے کہیں کہ ہم جائیں چھوڑ کر لندن جائیں، ان کا تو یہ ملک ہی نہیں ہے، ان کا کہاں ہے یہ کنٹری؟ یہ کنٹری ہمارا ہے جہاں ہم نے جانے دینی ہے، جہاں ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل سیکیور کرنا ہے، یہ کنٹری ان کا نہیں ہے۔ ان سے کہیں جدھر سے آئے ہو نا اس ملکوں کے جن کے ویزے لیتے ادھر جاؤ۔ اچھا پرویز الہی صاحب ساتھ دیں گے کہ اینڈ پہ یہ دوڑ جائیں گے؟ نہیں بالکل ساتھ دیں گے۔ وہ چلے گئے ہیں جن کی وجہ سے پرابلم تھا، حاجی صاحب آ گئے ہیں، اب حاجی صاحب چلے گئے، حافظ صاحب آ گئے ہیں، انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ مونس الہی صاحب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو، آگے ڈیٹ دی جائے گی۔ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ بیان دیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، آپ دیکھ لینا کیا ہوتا ہے۔ بریکنگ نیوز چلی ہے۔ بریکنگ نیوز بھی ہمارے جیسے بندے ہی چلا رہے ہیں نا بھائی، کہاں چل رہے ہیں؟ میڈیا ہے کہاں؟ آپ جیسے اور ہمارے جیسے یوٹیوبر ہی اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں بچے، ایسی کوئی بھی بات نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب آج اسمبلیوں کی ڈیٹ دیں گے تحلیل کرنے کے، اس کے بعد دیکھیں اب اتنے ایم پیز اوپر کھڑے ہوئے ہیں، ان کی سب کی پاکٹس کے اندر ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی کاف لیگ کے بھی اوپر کھڑے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر عوام خان صاحب کے ساتھ نکلی ہے تو کرنے کے لیے بھی ہم نکلیں گے انشاءاللہ۔ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے جا رہے ہیں نون والے پنجاب اسمبلی میں، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کیا عدم اعتماد کریں گے بھائی؟ ہے کیا ان کے پاس؟ وہ بس کر دو یہ ڈرامے بازیاں، کبھی آئین کے پیچھے چھپتے ہو، کبھی بندوں کے لوٹ مار میں کبھی پیسے دے کر لیتے ہو، کیا کر رہے ہو اس ملک میں؟ کس کو پاگل بناتے ہو بھائی؟ بس کر۔ کہتے ہیں ہمارے پاس تعداد مکمل ہے، پہلے بھی خان صاحب اٹھ گئے تھے، یہ بھی اٹھ جائیں گے۔ کیا مطلب ہے ان کا؟ ہم لوگ پاگل نہیں ہے جو عوام باشعور ہو چکی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، دماغ نہیں ہے۔ ہمیں پہ جو مسلط کر دی گئی ہے
क्या मैं उस इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर को बोलूं जिसका दिमाग यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, उसको क्या बोलूं? तो वो हमारे इंसल्ट करवाने के लिए हमारे पर मुसल्लत कर दिया गया है। उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से मशहूर था। कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन उसकी? मुझे एडमिनिस्ट्रेशन दिखाएं। सिर्फ वो इस एरिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है। जहाँ हमने जो मईशत की बात करनी है, मईशत का है, GDP कहाँ जा रहा है हमारा? हम किसके पास जाके फरियाद करें? जहाँ जाते हैं वहाँ पर बंद कर दिया जाता है, सहाफियों को पकड़ा जाता है। अरशद शरीफ का आपके सामने कत्ल है, उसका अभी तक FIR उसकी बीमार माँ नहीं करवा सकी है। खान साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर अपनी FIR नहीं करा सकते, गवर्नमेंट अपनी है, क्यों? क्या वजह? उनकी अगर नहीं हुई तो हम आवाम की क्या होगी? आवाम कहाँ जाएगी? आवाम के साथ तो कुछ भी नाजायज होगा, हम कुछ भी नहीं कह सकते ना। हमारी ज़बानों पे ज़िद लगा दी हुई है, लेकिन अब नहीं, अब नहीं और कभी नहीं इंशाल्लाह। मैडम खान साहब को गोलियां लगी, उसके बाद आवाम बाहर निकली नहीं। आगे पहले गोली नहीं लगी थी, उसके बाद इतनी आवाम होती थी, पूरा रोड फुल होता था। आज देख लें आवाम के बाहर निकली नहीं है। आप भी मुझे लगता है कि को PDM के साथ पहुंच गए हुए हैं। आपको भी मुझे लगता है क्लासेस की जरूरत लग रही है, मुझे लग रहा है ऐसे। रीजन ये नहीं है बच्चे, रीजन ये है कि जिनको तो पता है आजकल मीडिया इतना ज्यादा, सोशल मीडिया के ऊपर टाइमिंग्स आते हैं, आवाम अभी भी हमें नजर आ रही है। उसके अलावा फैमिलीज हैं, अब लड़कों को ज्यादा हमने मना किया था कि ज्यादा फैमिलीज आए ताकि उनको पता चले उनके बच्चों का फ्यूचर हम लोगों ने सेव करना है। आवाम आएगी, जैसे खान के पीछे देख लीजिएगा क्या होगा। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और तंजीला इमरान मेरे साथ मौजूद है। मैडम, सबसे पहले आपको मुबारक हो, और दूसरी बात यह है कि आज इमरान खान क्या सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं नून लीग को और PTI को? देखिए, खान साहब की शख्सियत हमेशा से सरप्राइजेस से भरी हुई है, और उनके दिल में जो बात होती है वो आम आदमी के इल्म में नहीं होती। वर्ल्ड कप से लेकर, नमल से लेकर, और अब तक खान साहब की जितनी भी फतूहात हैं, मैं समझती हूँ शायद इसकी वजह यही है कि वो अपना प्लान जो है वो अर्ली डिस्क्लोज़ नहीं करता। तो अब खान साहब जो भी करेंगे, गलत करेंगे, सही करेंगे, इतना हमें पता है कि पाकिस्तान और कौम के मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन फैसला होगा। हम खान साहब के साथ थे, हैं और रहेंगे, जो भी फैसला है। अच्छा, फराह गोगी के बारे में क्या कहेंगे? वीडियोस जो आई हैं, तस्वीरें जो लीक हुई, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं उस वक्त तक किसी की ज़ातियात पे नहीं जाऊंगी जब तक मेरे पास उसके खिलाफ कोई मटीरियल ना हो। आप ये देखिए कि बार बार कहते हैं, शुरू में हम सुनते थे कि जी PTI की जब हुकूमत जाएगी तो आपको करप्शन के अंबार नज़र आएंगे। तो भाई, आपसे एक दरख्वास्त भी, पर्चा होना तो दूर की बात, एक एप्लीकेशन भी आपकी किसी थाने में करप्शन के ऊपर किसी वज़ीर की या उसकी नहीं आई। फिर आप उरा परा से दाएं बाएं से रिश्तेदारों को ढूंढते हैं। फराह गोगी बेसिकली उसकी पहचान नून लीग के उसके ससुर हैं, उसका हस्बैंड है, तो आप उस तरफ से बात नहीं करते। इमरान खान की वाइफ की दोस्त, और मैं कहती हूँ कि इस सारे पैटीज इशू हैं। असल मसला मेरे मुल्क की मईशत है, असल मसला मेरे मुल्क की इकॉनमी है। खुदारा असल टॉपिक में आए, अपनी कोताहियाँ, खामियाँ, गलतियाँ छुपाने के लिए इधर उधर से टॉपिक्स ना आ रहे। मरियम औरंगज़ेब कहती है अगर फराह गोगी सच्ची हैं तो सामने आए। मैं कहती हूँ अगर मरियम औरंगज़ेब सच्ची हैं, जाएँ थाने, प्रॉपर बात करें, साबित करके दिखाएं, ज़बानी कलामी बातें ना करें। इस तरह की तकरीरें हम भी बड़ी कर सकते हैं। इमरान खान ने नवाज शरीफ को झूठा कहा, इमरान खान ने इनके वज़रा को करप्ट कहा, सब के सब पे पर्चे हुए, सब के सब अंदर हुए। आप हौसला करें, आप मुझे एक दूसरे को कहानियाँ मत सुनाएं। अगर आपको लगता है कि वो गलत है, उसने करप्शन की है, सबूत ले जाएं। आप 1 रुपए की करप्शन उस पर साबित नहीं कर सके तो असल टॉपिक में आए। मैं फिर वही कहती हूँ, इकॉनमी पे बात करें, मईशत पे बात करें। मेरा मुल्क डूब रहा है, दिवालिया की तरफ जा रहा है। एक 7वां बड़ा एटमी मुल्क है दुनिया का, उसके पास प्याज की LC के लिए डॉलर नहीं है, उसके पास तेल नहीं है। 20 दिसंबर के बाद आपके पास डीजल नहीं है, डीजल नहीं है तो आपकी तमाम तरसील का निज़ाम रुक जाएगा, आपकी मंडियों में सब्जी नहीं आएगी, आपकी फैक्ट्रियों के पहिए रुक जाएंगे। आप क्या चाहते हैं? और ये पैटीज इशू हैं, असल इकनॉमिक पे बात। अच्छा, PTI के अंदर में इतनी गड़बड़ें हैं, कोई कहते हैं कि जो है असम्बलियाँ तालील ना करें, कोई कहते हैं करते हैं, इसमें क्या चाहिए थी? देखिए, ये एक पॉजिटिव और हेल्दी डिस्कशन है, मैं समझती हूँ, और ये खान साहब ने हमेशा हमें ओपन फोरम दिया है कि सब अपनी राय का इजहार करें। तो इसमें ओपन डिस्कशन करना कुछ गलत नहीं है, कोई सबकी राय लेनी चाहिए। मैं समझती हूँ इसी से बेहतर फैसला करने में मदद मिलती है, लेकिन आखिरी फैसला इमरान खान साहब का ही होता है। अच्छा, इसहाक डार साहब आए हैं, उन्होंने कहा था कि मैं डॉलर नीचे ले आऊँगा, पेट्रोल सस्ता कर दूँगा, डीजल सस्ता कर दूँगा, बड़ी चीज़ें और सस्ती हो जाएंगी, मगर ऐसा 10 रुपये सस्ते किए उन्होंने, 10 के 12 रुपये तो नहीं हुए मेरे ख्याल में। इसके बारे में क्या कहेंगे? जो आलमी मार्केट में कीमतें कम हुई हैं उसके हिसाब से कम 30 रुपये कम होने चाहिए थे।
10 रुपए कम करके इन्होंने जो लॉलीपॉप दी है, कौम इन ठगों को बहुत अच्छी तरह जानती है। इसहाक डार को अगर अपने घर का बजट बनाने को कहा जाए ना तो यकीनन बेगम से जूते पड़ेंगे। ये आदमी इतने जोगा भी नहीं है जिसको इन्होंने माहिर माशियात इकोनॉमिस्ट बनाकर दुनिया के आगे पेश करके पागल बनाया हुआ है। डॉलर को किस तरह इसने कंट्रोल किया हुआ था, ये सारी चीज़ें जो दुनिया जान गई है। एक आम आदमी भी जो इकोनॉमिस्ट नहीं है, जो माहिर मईशत नहीं है, वो भी इन लोगों के चीज़ों को समझ गया कि लोग किस तरीके से हमें बेवकूफ़ बनाते रहे। तो मैं समझती हूँ अब चाहे शहबाज शरीफ अपने कपड़े बेचें, चाहे ये पेट्रोल 10 रुपये सस्ता करें, हालात इंतहाई नाजुक मोड़ पे हैं, मुल्क इस वक्त इंतहाई परेशान कुन हालात पे खड़ा है। इसका वाहिद हल इस वक्त फ्री एंड फेयर। शहबाज शरीफ साहब तो यही कहते हैं कि जब हम गवर्नमेंट हमने लिए तो बेड़ा गर्क था, अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसको उठा रहे हैं, इसको मईशत को उठा रहे हैं। क्यों ली बेड़ा गर्क हुकूमत, क्यों ली? कोई अंधा नहीं है, कोई पागल नहीं है, इतने पढ़े लिखे तो हम भी हैं। उस वक्त आपके करंट डेफिसिट क्या था, आपकी इकोनॉमी किस जगह खड़ी थी, आपके अकाउंट्स में कितने पैसे थे, अब और आज का तज्जिया कर लें, इसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको लगता है आपसे नहीं चल रहा तो फिर जब वो कहता है कि इलेक्शन करा दो, इतने बुरे हालात हैं, तो आप क्यों नहीं इलेक्शन कराते? मैं इन्हें एक बात बता दूं, रोज़ाना के हिसाब से नादरा में रजिस्टर होने वाला हर वोटर इमरान खान का वोटर है। कब तक इलेक्शन नहीं कराएंगे? इंशाल्लाह ताला 2 तिहाई छोड़े वो क्लीन स्वीप करेगा इंशाल्लाह। क्या समझती हैं इलेक्शन अगर हो गए हैं, अगर टाइम पे होते हैं तो पीटीआई जीत पाएगी? नून तो कहती नहीं हम बड़ा मुकाबला करेंगे, इनको नहीं जीतने देंगे। नहीं जीतने देंगे तो करा दो इलेक्शन। ये जो भी बाई इलेक्शन हुए थे उसका रिजल्ट आपके सामने, एक सीट इन्होंने ज़बरदस्ती छीनी। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान एक ब्रांड है। इमरान खान ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस ना सिर्फ इस्लामी ममालिक, इंटरनेशनल दुनिया उसकी तरफ देखती है, फैसलों में उसकी राय ली जाती है। हम समझते हैं कि इस मुल्क के हल सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। नवाज शरीफ का बयान था कि लंदन में कि इमरान खान का तोशा खाना जो चोरी की थी वो साबित हो चुकी है, अब इसको हम दौड़ने नहीं देंगे, भागने नहीं देंगे खान साहब को। मैं कहती हूँ तोशा खाना का सारा रिकॉर्ड सामने ले आए। इमरान खान कहीं नहीं भाग रहा। जो अपने घर के एक बनी गाला के घर का हिसाब किताब तुम्हें दे सकता है, वो तुम्हें तोशा खाने का भी हिसाब दे देगा। हाँ, इनके पास सरे महल और इवन फ्लैट्स के हिसाब किताब होगा, एक रसीद ये लोग दे नहीं सके। लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी इनकी जायदादें नहीं थी, उसके बावजूद लूट खसूट के पूरा मेरा मुल्क खा गए, नोच के ले गए, खून पी गए, हड्डियों से गुदा तक अवाम की निकाल के खा गए। इन लोगों की बातों पे हम लोग यकीन करने वाले नहीं हैं। परवेज़ इलाही साहब साथ देंगे खान साहब का? ये जो समियत तहलील होने जा रही हैं, क्या साइन हुए या नहीं हुए अभी तक? बहुत बड़ा इम्तिहान है परवेज़ साहब का, मैं समझती हूँ, और वो इसमें ज़रूर सुरखरू होंगे। उनसे भी ज़्यादा मुझे मोनस भाई से उम्मीदें हैं कि वो हमारे साथ हमेशा फेर रहा है। परवेज़ इलाही का प्रेशर है कि परवेज़ इलाही साहब का? नहीं, मैं समझती हूँ दोनों हक के साथ खड़े हैं। परवेज़ साहब के ऊपर मैं समझती हूँ इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त बहुत प्रेशर है, लेकिन वो उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि दोनों मिलकर जो भी फैसला करेंगे पाकिस्तान और मुल्क की बेहतरी के लिए। मेरे साथ एमपीए साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तानी रहनुमा हैं सादियो सैयद। मैडम, आज कहा कि खान साहब क्या ऐलान करने जा रहे हैं, समियत तहलील होगी या नहीं? देखिए, समियत तहलील होनी है, उसका टाइम फ्रेम खान साहब क्या देते हैं? दिस इज टोटली सरप्राइज। हम अपने लीडर के साथ खड़े हैं, असेंबली क्या हम जान देने को तैयार हैं अपने लीडर पे, सब कुछ कुर्बान, क्योंकि वो सब कुछ जो कर रहा है वो इस कौम के लिए कर रहा है, इस मुल्क के लिए कर रहा है। उसका कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। उसका मुल्क जिस तरीके से माशी बुरान का शिकार है, ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। इसको निपटने के लिए फौरी तौर पे सियासी इस्तेमाल इस मुल्क में बहुत ज़रूरी है। फराह गोगी की वीडियोस भी आई, तस्वीरें भी सामने आ गई, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये वीडियो और तस्वीर तो मरियम के मीडिया सेल का कमाल होता है, और बहुत से लोगों की आई। क्या हुआ? अगर कोई मुजरिम है, अगर किसी ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है तो उसको अकाउंटेबल करना चाहिए। मैं समझती हूं इंसाफ सबके लिए होना चाहिए, लेकिन इन्होंने फराह गोगी साहबा ने चैलेंज किया है, लेकिन ये क्या कर सके? कुछ साबित नहीं कर सके। मरियम नवाज का मीडिया सलामी वीडियो ऑडियो लीक्स, इसमें कहता है कि आजकल ये कोई चीजें बनाना या करना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि ये वीडियो सच्ची नहीं है, झूठी है? बिल्कुल, क्योंकि गोगी साहबा ने चैलेंज किया पब्लिकली भी। वैसे वो अपने आप को खुद डिफेंड करें,
मैं क्योंकि कोई उनका पोर्टफोलियो ऐसा नहीं है कि मैं डिफेंड करूं। बहरहाल अगर कोई किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी का मरतकब हुआ है तो उसका ज़रूर अकाउंटेबल होना चाहिए। मोहम्मद सलाही साहब कहते हैं कि हो सकता है कि समनियत तालीम ना की जाए, आगे डेट दी जाएगी। ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो लोग तो आपस में मशावरत में रहे हैं, हम क्योंकि उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन जो भी मसला होगा वो इस कौम के बेहतरी के लिए होगा इंशाअल्लाह ताला और बेहतरी आएगी। मेरे साथ सीमा अनवर मेरे साथ मौजूद है। मैडम, आज समनियत तालीम होगी या नहीं होगी कि आगे का टाइम दिया जाएगा? देखिए, इस वक्त तक एटलीस्ट काफ लीग ने हमें मुकम्मल तौर पर अख्तियार दे दिया है कि जो खान साहब डिसाइड करेंगे वो हमें मंजूर होगा। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी, वरना अब तक तो मीडिया में ये एडवर्टाइज हो रहा था कि जी आपको काफ लीग ने आपसे कोऑपरेट ही नहीं किया, उन्होंने रेजिग्नेशन के लिए हाँ नहीं किया। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुछ देर में अनाउंसमेंट होने वाली है जिसमें हमारी तरफ से 90% हमें यकीन है कि खान साहब असेंबली कर देंगे। और उसके बाद ये कोई नून लीग के लिए कोई सरप्राइज तो नहीं होगा? सरप्राइज नहीं होना चाहिए, पता है मुज़ाकरात फेल हो चुके हैं, मुज़ाकरात की टेबल पे आना ही नहीं चाहते, हम पार्लियामेंट में जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि खान साहब ने बात पहले कह दी है कि मैं चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये नहीं था कि हम पार्लियामेंट में बैठ के उनके साथ कोई हाथ मिलाना चाहते थे, ये मिसकंसेप्ट है हमारी आवाम को, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अलबत्ता कुछ शराइत थी कि इलेक्शन कब होंगे और सीट्स के एडजस्टमेंट किस होंगे, ये बातें करने वाली थी जो कि मुज़ाकरात हमारे कामयाब नहीं। अच्छा मैडम, जब खान साहब गवर्नमेंट में थे, वजीर आजम थे, तो जनरल बाजवा साहब थे, ठीक है, उनकी बड़ी तारीफ ही करते थे। अब जब जनरल बाजवा साहब सीट से उतर गए हैं, अब उनके मुखालिफ हो गए हैं खान साहब। मेरी एक बात का जवाब देंगे, क्या हमारी एस्टैब्लिशमेंट का किरदार माजरत के साथ क्या दुनिया के सामने आया नहीं हो चुका? बाजवा साहब का जिसमें बड़ा अहम किरदार था, मैं पूरी एस्टैब्लिशमेंट को कसूर नहीं देती, मगर बाजवा साहब ने बहरहाल कुछ ज्यादतियाँ की हैं जो शायद ये कौम मुद्दों तक अगर ज्यादतियाँ की हैं, खान साहब को पहले भी तो नजर आ रहा था ना, पहले खान साहब ने बड़ी तारीफें की हैं उसके बारे में। एक बात का जवाब दें, आपकी एक टीम में एक नया मेंबर शामिल होता है तो आपको कैसे पता चलता है कि वो अच्छा है या बुरा है या उसकी आदतें क्या हैं? जब वो आपकी टीम में शामिल होता है, जब उसका किरदार कुछ अर्से बाद ही आपके सामने आता है ना, तो बाजवा साहब का किरदार शुरू में तो हमें ठीक लगा है, पूरी कौम को ठीक लगा है, मगर आहिस्ता आहिस्ता कौम ने भी देखा और हमने भी किरदार का एक माह में पता चल जाता है, 2 माह में पता चलता है, 3 साल गुजर गए। 3 साल नहीं, बाजवा साहब का किरदार बहुत पहले था। और बात है कि हमारा लटकता चला गया कि शायद कहीं एस्टैब्लिशमेंट कहीं हमारा हुकूमत का कहीं साथ हो जाएगा। बहुत अरसे तक ये केस लटकता रहा, मगर ये बहुत पहले टसल चल चुकी थी, स्पेशली उस वक्त जब खान साहब ने अमेरिका का दौरा किया था, खान साहब ने फिर रूस का दौरा किया, उन दिनों में सारी टसल चल पड़ी थी, लेकिन पब्लिक के सामने नहीं आई कि शायद आपस में एस्टैब्लिशमेंट का या हमारा या फिर नून लीग का कहीं कोई किरदार सामने आ जाए। मगर हमने देखा ना जुडिशरी ने हमारा साथ दिया, ना एस्टैब्लिशमेंट ने हमारा साथ दिया, गुलामी हमें कबूल नहीं थी अमेरिका की। फिर बताएं और हमारे पास हाल क्या था? इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने आपका साथ दिए है ना, जब खान साहब इलेक्शन जीते हैं तो रिजल्ट दिखाया, ये देखिए रिजल्ट है। बाय इलेक्शन हमने जीता, अभी भी हमारी डिमांड यही है, अगर हम इलेक्शन स्वीप कर जाते हैं तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। देखिए, एक बात याद रखें कि अवाम की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, वो चाहे एस्टैब्लिशमेंट है उससे भी बड़ी ताकत है, या अमेरिका हो या कोई भी और मुल्क हो या कोई भी, मैं समझती हूँ कि वीटो सबसे बड़ी पावर अवाम की पावर है। तो मैं समझती हूँ कि अगर अवाम ने हमारा साथ दिया और अवाम ने हमें चुना तो फिर हमारे पास और किसी ताकत की जरूरत नहीं है। That's why हमारी मैडम, एक और बात है कि खान साहब के जो हक में फैसला आता है वो लोग ठीक होते हैं, जब खान साहब के हक में फैसला नहीं आता वो लोग खराब हो जाते हैं, क्या चक्कर है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको मिसकंसेप्ट है। हमारे खिलाफ कोई भी फैसला आए सड़कों पे बैठाएंगे अगर वो जेन्युइन हो। आपने देखा इलेक्शन कमीशन में जो कुछ हुआ वो गलत था, तोशा खाने का केस, क्योंकि आप देखिए घड़ी के पीछे पड़ गए हैं, अरबों खरबों डॉलर जो मुल्क से बाहर चलेंगे, आपको उसकी तो परवाह नहीं है, एक घड़ी का केस है उसके, और वो भी हम तैयार हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखें कि जब ये टेन्योर हमारा स्टार्ट हुआ था 2018 में, आपको याद होगा खान साहब ने ये बात की थी कि हमें एहतसाब हमारे बनी गाला से स्टार्ट करें। तब खान साहब ने ये बात की थी जब वजीर आज़म बन रहे थे, तो मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी बात कोई नहीं कि एक बंदा आपको एहतसाब के लिए खुद पेश कर रहा है। मैं आज भी ये चीज़ कहने के लिए तैयार हूँ कि मेरा एहतसाब खान साहब का एहतसाब
किसी भी लीडर का इंतजाम करें, हम तैयार हैं। आपने देखा कि अलीम खान और तरीन कौम ने कैसे बाहर निकाला, बिकॉज वो फिल्टर नहीं हो सके, उन्होंने अपने आप को क्लियर नहीं किया हमारी पार्टी के अंदर। तो हम वो पार्टी हैं जो इंसाफ के लिए बाहर निकले, हमारा वाटर और इस मुल्क में इंसाफ करना चाहते हैं। ये जो मेरे लेफ्ट साइड पे अब नहीं तो कभी पाकिस्तान नहीं। तहरीक इंसाफ के मैं अभी कारकुनान हैं, recently एवन इनसे फील्ड मेरी के आगे गुजारिश मुजाहरा है करके आई कि ये सामने और आ वहाँ जाए, पर ये 2-3 सामने पार्क पे आ जाए, रो ताकि कर उन्होंने थोड़ी मुझे देर में कहा कि तकरीर खुदा शुरू होने के वाली लिए है। हमारा पैगाम खान साहब तक दोस्तों, पहुंचे। खान साहब आप बिला हमारी ताखीर आखिरी उम्मीद है, मैं तो ये याद रखें, उन्होंने बिल्कुल सही बात की तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद